1917, and today I am going to start with you have done February Revolt of 1917, and today I am going to start with October Revolt 1917. You have also done impacts of February Revolt 1917. February Revolt 1917 के आप impacts भी कर चुके हो, ठीक है? And you have also done why Kerensky's government failed. ये सब आप कर चुके हो. And next is, I have told you that there were clashes between provincial government and Bolsheviks. You know the Bolsheviks na? Leader of Bolsheviks was Lenin, and उधर था Kerensky, provincial government का head. So there were clashes between provincial government and Bolsheviks. Start with October Revolt 1917. Causes लिख के आप इसमें लिखोगे there were clashes between provincial government and Bolsheviks. Or you can write like this, there were clashes between Kerensky and Lenin. अब इसमें आप बताओगे Kerensky ordered his military men to attack the Bolshevik buildings, and military men of provincial government attacked two newspaper buildings of Bolsheviks. They attacked the two newspaper buildings of Bolsheviks. Two newspaper buildings पे अटैक किए उन्होंने Bolsheviks की. Lenin formed Revolutionary Party, or you can write like this, Military Revolutionary Committee or Revolutionary Party, कुछ भी लिख सकते हो. Lenin formed Revolutionary Party under Leon Trotsky. अब Leon Trotsky कैसे लिखना है? Leon, Leon Trotsky, Trotsky. आप डबल आई भी लिख सकते हो और वाई भी लिख सकते हो, डिपेंड अपॉन योर विश. लेनिन ने क्या बनाई? रेवोल्यूशनरी पार्टी अंडर लियोन ट्रोट्स्की. LEON TROTSK. डबल आई भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो. स्पेलिंग कितना नहीं होता, ट्रोट्स्की वर्ड पढ़ा जाना चाहिए बस. And Bolsheviks decided to attack the Winter Palace. You know the Winter Palace na? Palace of Tsar. Tsar ka palace tha Winter Palace. Bolsheviks decided to attack the Winter Palace, but the date was kept secret. उन्होंने कहा हम विंटर पैलेस पे अटैक करेंगे, बट हम डेट नहीं बताएंगे. डेट उन्होंने सीक्रेट रखी. Bolsheviks decided to attack the Winter Palace, but the date was kept secret. डेट उन्होंने सीक्रेट रखी. Kerensky sent troops to protect the Winter Palace. क्योंकि इधर से Bolsheviks कह रहे थे हम अटैक करेंगे, तो Kerensky ने ट्रूप्स भेजे, आर्मी भेजी. You can write army or troops, एक ही बात है. Kerensky sent army to protect the Winter Palace. Bolsheviks attacked the Winter Palace and destroyed it. There was violence in Moscow. There was violence in Moscow city. And all this was handled by Lenin. Violence हुई, and all this was handled by Lenin. So Lenin became the leader of Russia, and Bolshevik rule was established in Russia. Lenin became leader and Bolsheviks rule was established in Russia. Bolsheviks का rule आ गया रशिया में. Lenin became the leader. Next you will write
impacts of, write 3-4 forms of question. Impacts of October Revolution, impacts of October Revolution 1917, or October changes, or changes introduced by Lenin after coming to power. कोई भी क्वेश्चन आए, आंसर इज सेम. अक्टूबर चेंजेस, कई बार सीधा लिखते हैं अक्टूबर चेंजेस, हु डिड इट, राइट अक्टूबर चेंजेस ऑफ 1917 एंड हु इंट्रोड्यूस दीज चेंजेस इन रशिया. ये पूछते होते हैं हु इंट्रोड्यूस, तो लेनिन है. यू नो इट वेल, आप कर लोगे इसको. 3 फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने बोले. इम्पैक्ट ऑफ 1917 अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर चेंजेस एंड चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय लेनिन. कुछ भी अगर आ जाए आंसर इज सेम. तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट यही बताओगे ना कि जो जो आपको अब याद होंगे, लेनिन थीसिस याद होंगे. THESES थीसिस के स्पेलिंग यू नो ना, THESES. तो जो जो उसके प्रोमिसेस थे ना पहले, तो वही पूरे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेनिन टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. लेनिन टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सबसे मेन डिमांड लोगों की यही थी ना, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर आना चाहते थे, तो उसने पहले आते ही यही किया. लेनिन टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सेकंड, ही नेशनलाइज्ड द बैंक्स. उसके पहले तीनों प्रोमिसेस लिख दो. He redistribute land among poor. He redistribute land among the poor. Next, land became the property of the state government. Land became the property of the state government. Next, Lenin asked people to surrender the titles given by Tsar. जार ने जैसे लोगों को कुछ टाइटल्स दिए हुए थे, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को दिए हुए थे टाइटल्स, तो गांधी जी ने कहा था सरेंडर द टाइटल्स गिवन बाय ब्रिटिश. यहाँ पे लेनिन ने बोला सरेंडर द टाइटल्स गिवन बाय जार. लेनिन आस्क्ड द रशियन पीपल टू सरेंडर द टाइटल्स गिवन बाय जार. He renamed his Bolshevik party as Russian Communist Party. उसने अपनी पार्टी का नेम भी चेंज किया. ही रीनेम किया, रीनेम्ड हिज बोल्शेविक पार्टी एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. एंड रशिया आपको पता है सबसे पहली कंट्री है जो कम्युनिस्ट कंट्री थी. रशिया पहली कंट्री है जो सोशलिस्ट बनी, रशिया कम्युनिस्ट बनी. सबसे लेट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी रशिया में आया. रशिया बैकवर्ड कंट्री थी, लेट आया सबसे लेट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सबसे पहले ब्रिटेन में आया, सबसे लेट रशिया में आया. लेनिन रीनेम्ड हिज पार्टी एज, बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या कर दिया उसने, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट, अदर पार्टीज वर बैंड. उसने सारी पार्टीज बैन कर दी. रशिया वन पार्टी स्टेट बन के रह गया एंड ऑल अदर पार्टीज वर बैंड. सारी पार्टीज लेनिन ने बैन कर दी रशिया में. Lenin made great progress in Russia, and under Lenin, Russia was becoming superpower. Various development work उसने किए ना, introduced in Russia. Lenin introduced various development works in Russia, and under Lenin, Russia was becoming superpower. कहाँ वो बैकवर्ड कंट्री थी जार के अंडर, अब सुपर पावर बनी जा रही थी वो. तो these were the changes introduced by Lenin. आपको कुछ भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, you can write like this. Next, अब इसके बाद आप बता सकते हो. नेक्स्ट इज लेनिन की अब डेथ हो जानी है 1924 में. लेनिन डाइड इन, लिख सकते हो आप, लेनिन डाइड इन 1924. अश्मित, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई हैव अनम्यूटेड अश्मित. अश्मित, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं एक बार लास्ट अश्मित, मैं एक बार लास्ट पॉइंट दोबारा बोल दूंगा. अश्मित, आई हैव अनम्यूटेड यू. नो आस्क व्हाट यू वांट. अश्मित, स्पीक लाउडली. एक बार लास्ट पॉइंट दोबारा बोल दो.
मैम हाँ? लास्ट लास्ट पॉइंट दोबारा बोल दो। ओके एक बार ओके, लास्ट आई एम पॉइंट गोइंग टू दोबारा बोल रिपीट दो। इट अगेन। यस मैं मैम। सारे अक्टूबर चेंजेस बोल देती हूँ एक बार, क्विकली बोल देती हूँ एक बार अक्टूबर चेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही कहोगे ना कि लेनिन टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन बैंक्स नेशनलाइज हो गए, देन लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर पीपल, ठीक है। फिर आप बता सकते हो लैंड बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उसने बोल्शेविक पार्टी का रीनेम किया, ही रीनेम बोल्शेविक पार्टी एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। He banned other political parties and Russia became one party state. सारी पार्टीज उसने बैन कर दी, रशिया एक पार्टी स्टेट बन के रह गया, एंड दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी। He asked people to surrender the titles, give back the titles given by Tsar. उसने कहा जितने टाइटल जार से मिले हुए हैं वापस करो, सरेंडर द टाइटल्स। जैसे अभी प्रकाश सिंह बादल ने अपना टाइटल सरेंडर किया है। He asked people to surrender the titles given by Tsar. तो दीज वर अक्टूबर चेंजेस। उसके अंडर रशिया सुपर पावर बन गया था, आप लिख सकते हो अंडर लेनिन रशिया वाज बिकमिंग सुपर पावर। अंडर लेनिन रशिया वाज बिकमिंग सुपर पावर। तो दीज वर अक्टूबर चेंजेस। अब लेनिन डाइड इन 1924। आफ्टर हिज डेथ स्टालिन केम इन पावर। स्टालिन पावर में आया। लेनिन की डेथ कब हुई? 1924। लेनिन डाइड इन 1924 and after his death Stalin, Stalin, Stalin became the leader of Bolsheviks. स्टालिन लीडर बना बोल्शेविक्स का। अब इसमें हम लिखेंगे राइट नोट ऑन स्टालिनिज्म। स्टालिन वर्ड लिख के ISM लिख दो तो स्टालिनिज्म बन जाएगा। स्टालिन के साथ ISM डाल दो, या फिर कोलेक्टिवाइजेशन। राइट नोट ऑन स्टालिनिज्म और कोलेक्टिवाइजेशन। राइट नोट ऑन स्टालिनिज्म और कोलेक्टिवाइजेशन। कोलेक्टिवाइजेशन पे नोट लिखो। कोलेक्ट वर्ड लिख के टी के साथ VISATION, कोलेक्टिवाइजेशन। राइट नोट ऑन कोलेक्टिवाइजेशन। आपको पता है किसने इंट्रोड्यूस किया? इट वाज इंट्रोड्यूस बाय स्टालिन। तो डू इन पॉइंट्स, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टालिन who became the leader of Russia after the death of Lenin. It was introduced by Stalin. स्टालिनिज्म आएगा फिर तो आपको पता ही चल जाना है स्टालिन। कोलेक्टिवाइजेशन आएगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। It was introduced by Stalin, who became the leader of Russia after the death of Lenin. He removed kulaks. 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 And in bracket you will write very rich peasants. He removed kulaks. Kulaks, KULAKS, very rich peasants. He redistributed land of the kulaks among. He redistribute. Yes, एक मिनट, दीपांशी का हैंड अप है, वेट। Dipanshi, what's the problem? I have unmuted you. Dipanshi, be quick. Yo, what's up guys? Welcome back to another gameplay video. तो हाँ? guys स्वागत है आपका टेक्निकल गेमिंग वीडियो चैनल पर। क्या Guys, पूछ आज रहे हम आप? खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। Dipanshi, be quick. Hurry up. Dipanshi, unmute yourself. I have unmuted you. Yo, what's up guys? Welcome मैंने back to खुद another unmute किया gameplay हुआ है, video. आप तो अपने guys आप आज को हम तो करो। खेलने जा रहे हैं जी। तो guys जैसे तो पता होगा पिछले एपिसोड में माइकल ने Yes. हमसे GTA 5 में लैम्बोर्गिनी स्कैन। I'm going to repeat it again. After the death of Lenin, Stalin came to power and he introduced collectivization. Yes, एक मिनट, वंशिका, I'm going to unmute you. You please tell me. वंशिका, वंशिका हैंड अप करो। Arzu, I'm going to unmute you. Arzu,
Arzu, I have unmuted you. Arzu, unmute yourself. Okay, चलो नहीं प्रॉब्लम तो लीव इट. यस, अब रिधिका ने हैंड अप किया, बट सब प्रॉब्लम ऐसे क्यों हो रहा है? रिधिका, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम इट वाज अ फेक आईडी. ओके ओके ओके, ठीक है. ओके, ठीक है, चलो. तभी मुझे लगा ही था कि दीपांशी के नाम से कोई और बोल रहा है. ओके ओके ओके, कोई बात नहीं. तो नेक्स्ट इज we were doing Stalin came in power, introduced collectivization, and collectivization में अब उसने क्या क्या steps उठाए? He removed kulaks. Kulaks कौन थे? Very rich peasants, and he took land from kulaks. उसने उनसे land छीन ली थी. Stalin took land from kulaks and distributed among poor. स्टालिन ने कुलक से लैंड छीन के पुअर में बांट दी. He introduced kolkhoz, KOLKHOZ. He introduced kolkhoz, KOLKHOZ. kolkhoz इंट्रोड्यूस किए थे उसने. अब kolkhoz का मीनिंग लिखना है. Where people worked collectively and distributed the produce according to the work done by them. He introduced kolkhoz, large farmland where people worked collectively and distributed the produce according to the work done by them. जितना जो काम करता था उसको उतना शेयर मिल जाता था वहां से. He forced people to follow Stalinism. लोगों को जबरदस्ती बोला कि स्टालिनिज्म को फॉलो करो, जैसे रॉबस्पियर ने फोर्स किया था कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फेवर में जाओ, वैसे ही. He forced people to follow Stalinism. People who were against Stalinism were given strict punishments. अब उसके अगेंस्ट कौन थे? कुलक्स. People who were against Stalinism were given strict punishments. This system in Russia got failed. Collectivization got failed in Russia because there was no progress in agricultural field under this system. ये सिस्टम फेल हुआ है रशिया में because there was no progress in agricultural field in Russia. एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई थी रशिया में, तो दिस सिस्टम गॉट फेल्ड. तो इस वे से आप स्टालिनिज्म लिखोगे. इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टालिन. स्टालिन कौन था? आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, स्टालिन केम टू पावर, leader of Bolsheviks, and introduced collectivization. Kulaks, he removed kulaks. You know who were kulaks? He introduced kolkhoz. अब kolkhoz का भी आपको मीनिंग पता है. लैंड किससे ले ली? कुलक से. किसमें बांट दी? पुअर में. एंड forced people to follow Stalinism. जो नहीं फॉलो करते थे, they were given strict punishments. ये सिस्टम फेल हुआ because there was no progress in agricultural field under Stalinism. नेक्स्ट आ गई सिविल वार. यस दिया, व्हाट्स द प्रॉब्लम? दिया अब मैं, हाँ जी, एक मिनट. दिया, स्पीक लाउडली. आई हैव अनम्यूटेड. मैम स्टैलिनिज्म का मेन रीजन क्या था इंट्रोड्यूस करने का? हाँ जी, वो भी मैं बताती हूँ. वेट. मेन रीजन के जो प्रॉफिट है ना, वो सब में शेयर हुए. कुलक्स के पास था सब पहले. रिच पीजेंट्स, सारा प्रॉफिट रिच पीजेंट्स के पास रहता था. जो उनके पास पुअर पीजेंट्स वर्क करते थे ना, वो अभी भी उनको बहुत प्रॉब्लम्स थी. वो उनके साथ कोई प्रॉफिट नहीं शेयर करते थे, उनको बहुत कम वेजेस देते थे. तो लेनिन एंड स्टालिन ये दोनों पीजेंट्स के
फेवर में रहे हैं। इंडिया की जो पार्टीज है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो पीजेंट्स एंड वर्कर्स की ही हैं। आपको ध्यान में लेके आओ, सीपीआई, सीपीआईएम, इंडिया की कम्युनिस्ट, ये जो हमारी पार्टीज है ना, सीपीआई एंड सीपीआईएम, कार्ल मार्क्स और लेनिन के व्यू को लेके चलती हैं। ये पीजेंट्स एंड वर्कर्स के लिए काम करती हैं। तो वहां पे रिच पीजेंट्स जो थे ना, वो पुअर के साथ इनजस्टिस करते थे। तो स्टैलिनिज्म इसलिए आया कि ताकि लैंड की प्रॉपर्टी बन जाए और एक कोल खोज में सब मिलके काम करें, किसी को इक्वल, हर कोई जितना कोई काम करेगा उतना उसको शेयर मिलेगा। जैसे जितना मितांश काम करेगा, मितांश को उतने नंबर मिलेंगे। वही जैसे आप जितनी मेहनत पेपरों में करते हो उतने ही नंबर मिलते हैं ना आपको। सेम एज आप जितना वर्क करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसका फल मिलेगा। ऐसे तो उसने देखा कि जो जितना हार्ड वर्क करेगा उसको उतना प्रॉफिट होगा। तो स्टैलिनिज्म इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो पुअर है ना उनको प्रॉफिट हो, उनको भी, उनकी भी कंडीशन इंप्रूव हो जाए रशिया में। बट ये फेल हुआ था सिस्टम उसका। उसने क्योंकि फोर्स किया था लोगों को, और साथ में अभी कुलक्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आ गई सिविल वार। अब लोग तो चुप बैठेंगे नहीं, जिनकी लैंड छीनी गई है वो चुप थोड़ा बैठेंगे। अब आ गई सिविल वार इन रशिया। सिविल वार हुई रशिया में बिटवीन बॉल्शेविक्स। आप लिखोगे, पहले तो सिविल वार का मीनिंग पता होना चाहिए। इसको प्रेजेंट टेंस में मीनिंग बताओ। व्हेन देयर इज वार बिटवीन, सिविल वार का पहले मीनिंग बताओ। व्हेन देयर इज वार बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ सेम कंट्री। एक ही कंट्री के लोगों की आपस में लड़ाई होना, इसमें दूसरी कंट्री कोई इन्वॉल्व नहीं है। When there is war between people of the different social groups of the same country, that is called civil war. What is civil war? When there is war between people of different social groups of the same country. तो ये तो होगी सिविल वार। अब आप लिखोगे, सिविल वार was held in Russia between Bolsheviks and non-Bolsheviks. Bolsheviks and non-Bolsheviks. Non-Bolsheviks protested because their land was taken by the government and distributed among poor. Non-Bolsheviks got support from non-Bolsheviks को अब सपोर्ट कौन कर रहा था? यूके, फ्रांस, यूएसए, because these countries did not want the spread of socialism. These countries did not want the spread of socialism. They feared, ये countries डरती थी, that after Russia socialism would came in their countries. उनको डर था कि रशिया के बाद सोशलिज्म हमारी कंट्रीज में भी आ जाएगा, हमारी कंट्रीज में भी वर्कर्स जाग जाएंगे, पीजेंट्स जाग जाएंगे, अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। These countries feared that after Russia socialism came to their countries also. तो इसलिए इन्होंने नॉन बॉल्शेविक्स की सपोर्ट की, क्योंकि ये नहीं चाहते थे सोशलिज्म आए। एंड बॉल्शेविक्स गोट सपोर्ट फ्रॉम, अब आप कर चुके हो, बॉल्शेविक्स ने नॉन रशियंस की हेल्प की थी, यू नो इट वेरी वेल। तो बॉल्शेविक्स गोट सपोर्ट फ्रॉम नॉन रशियंस, क्योंकि लेनिन ने नॉन रशियंस को राइट्स दिए थे। आप अक्टूबर चेंजेस में एक लाइन ऐड कर सकते हो, गिव राइट्स टू नॉन रशियंस आल्सो। अक्टूबर चेंजेस में ऐड कर सकते हो ये भी लाइन। तो नॉन बॉल्शेविक्स गोट सपोर्ट फ्रॉम नॉन रशियंस, सॉरी, बॉल्शेविक्स गोट सपोर्ट फ्रॉम नॉन रशियंस। नॉन बॉल्शेविक्स की हेल्प की थी दूसरी कंट्रीज ने, क्योंकि वो सोशलिज्म स्प्रेड नहीं होने देना चाहती थी। एंड बॉल्शेविक्स गोट सपोर्ट फ्रॉम नॉन रशियंस। नॉन रशियंस कौन थे? बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, ये लोग होते थे, जदीदीस, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स। ये they got support from non-Russians. Again there was violence and
Situation was controlled by Bolsheviks. Peace was maintained by Bolsheviks. Again, there was violence and situation was handled by Bolsheviks and peace was maintained by Bolsheviks. So this led to the formation of Union of Soviet Socialist Republics. This led to the formation of Union of Soviet Socialist Republics. Soviet Socialist Republics from Russian Empire. Means USSR बन गया. USSR. USSR का meaning Union of Soviet Socialist Republic. This led to the formation of USSR from Russian Empire. Union of Soviet Socialist Republic. ये बाद में जाके फिर टूट गया 15 इंडिपेंडेंट नेशंस में. बाद में जाके टूटा 1991 में शायद. अब ये टूट चुका है 15 इंडिपेंडेंट नेशंस में ये बट चुका है. ठीक है, अभी ऐसा नहीं है. तो ये यूएसएसआर बना रशियन एम्पायर से. ठीक है, तो नेक्स्ट इज इसके बाद ये क्या. यस, अब आपका रशियन रेवोल्यूशन टोटली कंप्लीट. अब आपके 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट एंड वो कौन से हैं. फर्स्ट इज क्या हो रहा है मेरे फोन. सॉरी स्टूडेंट्स, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है बीच में. तो अब आपका आ रहा है इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया एंड इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड. ग्लोबल इम्पैक्ट आता है एक तो टॉपिक, एक आता है इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया. दीज 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट. इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया, फर्स्टली डू इट एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ. आप अपने आप कर सकते हो ये वाला टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया. यू कैन डू इट योरसेल्फ. राइट द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया. यू कैन डू इट योरसेल्फ. इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया आप अपने आप कर सकते हो. फर्स्ट तो आप यही लिखोगे ना, एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल. एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, इसको एक्सप्लेन कर दोगे. एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल को, एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे. एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल. ठीक है, नेक्स्ट आप बता सकते हो रशिया बिकेम सुपर पावर. हेडिंग बनाओ, रशिया बिकेम सुपर पावर. इसमें आप बता सकते हो अंडर जार रशिया वाज बैकवर्ड कंट्री, but after the revolution under Tsar Russia was a backward country, but after the revolution it made great progress, firstly under Lenin, then under Stalin. After revolution it became superpower, firstly under Lenin, then under Stalin, and became superpower. Listen again. Under Tsar, Russia was a backward country, but it made great progress. Firstly under Lenin, then under Stalin, and became superpower. Next आप लिख सकते हो न्यू स्कूलिंग सिस्टम इन रशिया. न्यू स्कूलिंग सिस्टम. अब इसमें आप बता सकते हो आफ्टर रेवोल्यूशन न्यू स्कूलिंग सिस्टम वाज सेट अप इन रशिया. Now children of poor peasants
could also, now children of poor peasants could also join universities for higher education. Crèches were also set up. I have told you there were no crèches for the children of women workers. वो अपने बच्चों को फैक्ट्रियों में साथ लेके जाती थी. Crèches were set up. Crèche पता है ना? Crèche प्री नर्सरी से पहले कई बार पेरेंट्स बच्चों को वहां भेज देते हैं. Crèches were set up for the children of women workers. Crèches set up हुई थी for the children of women workers. तो इस वे से आप बता सकते हो सारा ये. Crèches set up हुई थी for the children of women workers. So in this way you can write. Only 2 minutes are left. We will do later on. कोई बात नहीं, ये इम्पैक्ट हम बाद में भी कर सकते हैं. हॉलीडेज होमवर्क आपको मिल चुका है. Listen carefully how to do. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिविक्स या हिस्ट्री की जो भी असाइनमेंट है आप उसे लूज शीट्स पे करके पीडीएफ बना के मुझे भेजोगे. थोड़ा सा काम दिया आपको, ज्यादा नहीं है. और ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है, ये आपका हॉलीडेज होमवर्क नहीं है. ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज है. ठीक है, इसको आप लाइटली मत लेना, इसके आपको मार्क्स मिलने हैं. ठीक, और आपके पेपर्स में ऐड होने हैं. एंड ज्योग्राफी का जो काम है आपका, जो भी है मैप है, डायग्राम है, जो भी आपको सर ने दिया वो आप करके सुरेंद्र सर को भेजोगे. ठीक है, हिस्ट्री का जो भी है या सिविक्स का वो आप मुझे भेजोगे. ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो भी आपको वर्क मिला वो आप सुरेंद्र सर को भेजोगे. एंड ये आपको, आप इसको हॉलीडेज होमवर्क नहीं कह सकते, ये आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज हैं, पार्ट ऑफ. आपको पता है ना आपके पेपर में इसके आपको मार्क्स मिलने हैं, ये ऐड होने हैं पेपर में. एक हिसाब से आपका बर्डन कम किया गया, आपको ज्यादा काम नहीं दिया गया. आपको सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज ही हॉलीडेज होमवर्क बना के दी गई हैं. ठीक है, एक आपको अभी मिली है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, एक आपको मिलेगी इन अक्टूबर मंथ में भी, इन अक्टूबर मंथ. ओके, तो 2 एक्टिविटीज आप करोगे सब्जेक्ट एनरिचमेंट, और ये आपके पार्ट ऑफ पेपर भी बन जाएंगी बिकॉज मार्क्स आर गिवन एंड एडेड इन द, आपके रिजल्ट में ऐड होंगे ये मार्क्स. सो डू दिस वर्क वेरी नीटली. एंड ये और बात सुनो, हैंड रिटन होना चाहिए. बच्चे क्या करते हैं, टाइप करते हैं और चलो कंप्यूटराइज निकालते हैं सारा मटेरियल और फाइल बना देते हैं. नो, इट शुड बी हैंड रिटन. सीबीएसई खुद कहती है हैंड रिटन को प्रेफर करो. बच्चों के हाथ का लिखा, कोई कलरिंग नहीं करनी, कोई डेकोरेशन नहीं करनी, इट्स नॉट अलाउड. कोई ब्लैक पेन नहीं यूज करना, सीबीएसई ब्लैक पेन यूज करने को मना करती है. आपने अपने सिर्फ ब्लू पेन से सिर्फ असाइनमेंट ही करनी है, सिंपल वे से अपने क्वेश्चंस करने हैं. डेकोरेशन में बिल्कुल मना कर रही हूँ. सिंपल आपने लूज शीट्स पे जो भी आपको 3 या 3 आई थिंक 3 टॉपिक्स आर गिवन, आपने वो टॉपिक करने हैं और एक पीडीएफ बना के मुझे भेजनी है. इज इट क्लियर? अब हैप्पी हॉलीडेज. ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग. हैप्पी हॉलीडेज स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.